بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 2-3 دن سے پی ٹی آئی کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو لندن جانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، یعنی جو مقتدر ادارے ہیں وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ لندن چلے جائیں، اور تاثر دینے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان پاکستان میں رہتے ہیں تو ان اداروں کے لیے خطرہ ہے، اس لیے وہ نے لندن دھکیلنے کا پلان بنا لیا ہے۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ مقتدر ادارے زبردستی تو اس کو اٹھا کر باہر نہیں بھیجیں گے، یہ اپنی رضامندی سے ہی جائے گا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے جبکہ عمران خان کہتا ہے کہ میں کسی کے دباؤ میں آنے والا نہیں ہوں؟ ناظرین، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، اور بالکل ممکن ہے کہ چند دنوں میں یا کچھ عرصے میں اگر کوئی بہت بڑا ڈرامائی کلائمیکس نہ آ گیا یا اینٹی کلائمیکس نہ آ گیا تو عمران خان کی طرف سے یہ درخواست باضابطہ طور پر کر دی جائے گی کہ مجھے باہر بھجوا دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے کئی دن سے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اس پر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے، وہاں رضاکار پہنچا دیے گئے ہیں اور طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے ممکنہ قاتلوں کے نام بھی بتا دیے ہیں، تو دراصل یہ اس لندن جاؤ پلان کا ایک حصہ ہے تاکہ یہ فضا بنا دی جائے کہ عمران خان کی جان کو سخت خطرہ ہے اور وہ لندن جانے پر مجبور ہو گیا، جس کے بعد پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے بچے کھچے عناصر ہیں وہ یہ مہم چلائیں گے، اور خاص طور پر جو اوورسیز ہیں وہ زیادہ زور سے مہم چلائیں گے کہ پاکستان میں رہ کر جان دے دینا ملت اسلامیہ کا بڑا عظیم نقصان ہوتا۔ عمران خان نے لندن جا کر امت کی قیادت کو بچا کر امت پر احسان کیا ہے، یعنی الٹی طرف سے یہ پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ یہ نوبت کیوں آئی؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سے جو چیزیں چل رہی ہیں، جس طرح اس کی طرف سے رابطے کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی، بالواسطہ بھی، براہ راست بھی، وزیروں کے ذریعے بھی، وزیروں کے واقف کاروں کے ذریعے بھی، یعنی بیچ میں ایک اور پارٹی کو لا کر رابطے کیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ عمران خان کو نہ صرف یہ ہے کہ حالات سے مایوسی ہے، بلکہ اسے بہت زیادہ اندیشہ اور خوف اس بات کا بھی ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ کل بھی اس نے وکیلوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو آپ سب نے متحد ہو کر تحریک چلانی ہے، پاکستان کی تمام بار کونسل اکٹھی ہو جائیں۔ یہ اپیل کرتے ہوئے اسے یاد نہیں رہا کہ بار کونسلوں کی اکثریت جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی ہے اور آصفہ جہانگیر گروپ سے تعلق رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی کے حامی وکلاء کے جو عہدیدار ہیں وہ بہت کم ہیں، مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا صدر پی ٹی آئی کے باقی سارے عہدیدار جو ہیں وہ پرو ڈیموکریسی ہیں، اسی طرح لاہور میں ہے، باقی کراچی ہو گیا، پاکستان بار کونسل ہو گیا، سپریم کورٹ بار کونسل ہوگی، ان میں تو پی ٹی آئی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ تو لیکن یہ جو مطالبہ ہے اس کا تعلق بھی اس خوف سے ہے جو اس پر طاری ہے۔ کل روزنامہ امت کراچی نے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے کہ یہ کس طرح بری طرح ڈرا ہوا ہے، اور پارٹی کے رہنما بھی اسے ڈرا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ حالانکہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس کی گرفتاری کا وقت نہیں آیا، کیونکہ ہم یہ بات پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہاں سے تو حکومت پر دباؤ ہے یا اشارہ ہے کہ اسے پکڑ لو، اس کی سرگرمیاں بہت غلط ہیں، لیکن حکومت یہ اس بات پر تیار نہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کو باہر رہ کر کمزور ہونے دیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 ہفتوں میں اس کی طاقت کم سے کم ہوئی ہے، اور اس کی تفصیل بھی میں بتاتا ہوں کہ اداروں کے ساتھ رابطوں میں اسے کیا بتایا گیا۔ لیکن پہلے ضمنی طور پر تھوڑا سا تبصرہ اس بات پر کہ وہ جو چند ایک ریٹائرڈ افسر تھے وہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر انہوں نے پریس کانفرنس کر کے جس طرح اپنا تماشا لگوایا اور خود کو بھی بے عزت کروایا اور پی ٹی آئی کو بھی بے عزت کروایا، جس کے اشارے پر وہ پریس کانفرنس کرنے آئے تھے، اور گالی گلوچ کر کے دھمکیاں دے کے ایک صحافی کو، ایک جنرل نے جو ریٹائرڈ جنرل نے جو پشاور کا کور کمانڈر بھی رہا ہے، یہ تک کہہ دیا کہ تم اپنے جنازے کا بندوبست کرو، اس طرح اپنی ذہنیت آشکار کی، اور ہر طرف سے اتنی زیادہ گالیاں ان لوگوں کو پڑی ہے جس کی حد نہیں۔ لیکن آخری ان کے تابوت میں جو آخری کیل وہ ٹھوکی وہ عسکری ذرائع نے، اعلیٰ سطح کی عسکری ذرائع نے بی بی سی کو انٹرویو میں بتایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان سے کسی ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 3 مہینے کے اندر الیکشن کرانے کا کوئی وعدہ نہیں کیا، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ یہ ریٹائرڈ افسروں کی یا ریٹائرڈ فوجیوں کی نمائندگی نہیں کرتے، یہ چند لوگ ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چند لوگ ہیں۔ پاکستان میں ریٹائرڈ فوجی افسروں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور یہ جو
उछल कूद कर रहे हैं। मुशर्रफ दौर के ज़माने से जो करप्शन के आदी चले आ रहे हैं, बल्कि इससे भी पहले की भी, वो आपने वो जनरल हबीबुल्लाह के बेटे को भी देख लिया होगा, जो अयूब खान का करप्ट वजीर था। तो ये चंद लोग हैं, ये ज़्यादा लोग नहीं हैं। वो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के लोग भी चंद ही थे, 100 के करीब होंगे, 100 से कम होंगे या 100 से एक आध ज़्यादा होगा। वो तितर बितर होगी तंजीम। कुछ लोग उनके भाग गए, कोई तुर्की भाग गया, कोई फ्रांस भाग गया, कोई बरतानिया भाग गया, तो वो तंजीम भी तितर बितर होगी। और ये तो बिल्कुल ही, इनकी तो कोई गिनती नहीं है, 6-7 लोग या 8-10 लोग, इससे ज़्यादा नहीं है। तो पीटीआई की तरफ से ये एक जो कैंपेन पिछले दिनों में किसी हद तक हमें कामयाब होती हुई नज़र आ रही थी कि रिटायर्ड फौजी अफसर जो है वो सारे के सारे इमरान खान के हामी और इमरान खान के लिए मरे जा रहे हैं। उनकी बीवियाँ और बच्चे भी इमरान खान के आशिक हैं और वो इमरान खान के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। तो वो उस बारे से पूरी तरह हवा निकल गई, पूरा एक्सपोजर हो गया कि ये कितने थोड़े लोग हैं और ये कोई नुमाइंदे नहीं है। और मुसल्लह अफवाज के ज़राए ने BBC को ये भी बताया कि रिटायर्ड अस्करी अफराद कोई भी तंजीम बना सकते हैं, लेकिन वो उस तंजीम के प्लेटफार्म पर सिर्फ रिफाही काम कर सकते हैं अपने इदारे से वाबस्तगान के लिए, सियासत नहीं कर सकते। सियासत करनी है तो वो आज़ाद हैं, अपनी मुतल्लिका सियासी पार्टी में जाएँ, कोई और तंजीम बनाएं, लेकिन फ़ौजी तंजीम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही ये तासुर दे सकते हैं कि वो फ़ौजी इदारे से वाबस्ता है अपनी सियासी सरगर्मी के लिए। यही दुरुस्त बात है और ये ऐसा ही है। लेकिन इन लोगों ने इमरान खान की गुमराह करने पर ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे अस्करी इदारों के अंदर से एक रिवोल्ट फूट पड़ा है और पता नहीं क्या होने वाला है। तो नाज़रीन, पिछले दिनों में जो चीज़ें हुई हैं वो ये है कि किसी इदारे या महकमे का नाम नहीं लेता, लेकिन जो दो तरफा राब्ते हुए हैं उनमें इमरान खान को 2-3 बातें बताई गई हैं। एक तो ये बताया गया कि तुम्हारा धरना बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ है। 20 लाख तो खैर एक मुबालगा में दावा था, अगर 1 लाख आदमी भी आ जाते तो शायद तुम्हारी कोई वक़्त बढ़ जाती, तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाता, लेकिन वो तो 20,000 भी नहीं थे। और ये पूरी दुनिया कह रही है कि 15,000 थे। ज़्यादातर का ये कहना है कि 14-15 हज़ार थे और कुछ का कहना है कि नहीं 15,000 से ज़्यादा थे, 20,000 के राउंड अबाउट थे। और ये भी फैक्ट है कि जब इमरान खान जिन्ना एवेन्यू पहुंचा तो उस वक्त टोटल शुरका की तादाद जो थी वो 7-8 हज़ार से ज़्यादा नहीं थी और कोई 800-900 बलवाई जो थे वो डी चौक में इसके अलावा थे। उनको मिलाकर आप 9-10 कह लें, ये तादाद थी, यानी जो वहाँ से निकले थे जब पुख्तूनख्वा से, उससे भी आगे रह गई। दूसरी बात, इमरान खान को जो कन्वे की गई, ज़ाहिर अल्फाज के अपने मुंतखब होते हैं और उसमें जो अंदाज है बात करने का वो भी डिप्लोमेटिक किस्म का और बड़ा यानी तरीके से वो बात कन्वे करते हैं। तो दूसरी बात ये कन्वे की गई कि तुम्हारे जलसों में लोगों की तादाद जो है वो मुसलसल कम होती जा रही है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पर फैसलाबाद के जलसे का हवाला दिया गया, जो पंजाब में शायद उसका आखिरी जलसा था। फैसलाबाद कोई छोटा शहर नहीं, मेगा सिटी है, यानी कराची लाहौर के बाद फैसलाबाद और हैदराबाद का नंबर आता है। ये बड़े शहर हैं, मिलियंस में इनकी आबादी है। तो फैसलाबाद में इतना बड़ा शहर और वो एरिया भी गुंजान है, यानी पूरा इर्द गिर्द का इलाका जो है वो भी ये है कि हर 4-5 मील के बाद कोई ना कोई छोटा बड़ा शहर आपको वहाँ मिल जाएगा, यानी कंजस्टेड डिवीजन है। तो वहाँ 8,000 लोग थे फैसलाबाद के जलसे में। जब जलसे से इमरान खान ने खिताब किया तो उस वक्त वहाँ की हाज़िरी 8,000 थी। सबसे ज़्यादा आसान हाज़िरी इसी जलसे की गिनी गई, क्योंकि दूसरे जलसों में ये होता है कि अंदाज़ा होता है कि 10 होंगे या 12 होंगे, 15 होंगे या 16 होंगे। लेकिन फैसलाबाद में ये था कि वो धोबी घाट का जो एरिया था जिसमें जलसा हुआ वो पहले से लोगों ने माप रखा था, क्योंकि वो धोबी घाट पहले से मुख्तसर कर दिया गया, वहाँ कुछ और कंस्ट्रक्शन हो गई है। तो बड़े आराम से उसमें अंदाज़ा किया जा सकता है कि अगर ये भरा हुआ हो तो उसमें 8,000 लोग आते हैं या 10,000 लोग आते हैं। तो उस हिसाब से ये मालूम करना आसान हो गया कि ये 8,000 लोग थे। इसी तरह आखिरी मरहले में इसने ये पख्तूनख्वा में जहाँ जहाँ खिताब किया, बुनीर में, दीर में और 2-3 जगह पर, और तो वहाँ भी हाज़िरी पख्तूनख्वा के पिछले महीने के होने वाले जलसों के मुकाबले में कम थी। इमरान खान को ये हमदर्दाना तरीके से बताया गया कि तुम्हारे जलसों में भी लोग आना कम हो गए और तुमने 2 या 3 कालें दी हैं एहतजाज की, उनका नतीजा आपने देख लिया कि 0/0। बाहर निकलने की काल हवा में उड़ गई, ख़त्म हो गई। तो सूरत हाल, सियासी सूरत हाल तुम्हारे माफ़क नहीं है और अगर तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो तुम्हारे हक में कोई काबिल ज़िक्र मुजाहरा नहीं होने वाला। हत्ता कि ये जो लीडर तुम्हारे साथ बैठकर कहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो हम कब्रें खोद देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता नहीं समुद्रों का पानी लाहौर में ले आएंगे और पता नहीं क्या करेंगे। तो ये लीडर भी एक बयान देकर चौक में खड़े होकर
एक फ़ोटो सेशन करवा के अपने घरों में आराम से जाकर लेट जाएंगे। और फिर ये भी इमरान खान को अच्छी तरह पता चल गया है कि 140 के करीब अरकान कौमी असम्बली ने इमरान खान को साफ कह दिया है कि हम तो इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम तो इस्तीफ़े नहीं देंगे। ये इमरान खान के लिए बहुत शॉकिंग सूरत हाल है। चंद दिन पहले PTI ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि हम इस्तीफ़े दे चुके, डिप्टी स्पीकर उनको एक्सेप्ट भी कर चुका, हमारे वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब वो जो है ना, कट्टे की पुशल पकड़ कर वापस आने का ड्रामा कि कटिया मुझे ना ले जा, मैं तो नहीं जाना कर, तो कट्टे की दुम से खिंची खिंची वो घर पहुंच जाती है, वो घर से भागी हुई लड़की। तो अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर हमारी फलां बात पर मुज़ाकरात किए जाएँ तो हम कौमी असम्बली में वापस आ जाएंगे, अगर हमारा फलां मुतालबा मान लिया जाए, अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाएँ, अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, तो हम असम्बली में वापस आ जाएंगे। यानी वो ऐलान कि हमारे तो इस्तीफ़े डिप्टी स्पीकर एक्सेप्ट कर चुका है, वो गोया कि वो भी झूठ था, वो वापस ले लिया गया। ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है और थूक कर चाटने की पूरी तरह तैयारी है। तो इस सूरत हाल में इमरान खान के पास दो रास्ते बचते हैं। एक तो ये है कि वो फिर से एहतजाजी तहरीक का ऐलान करे। ज़ाहिर है उसे हर तरफ से ये फीडबैक मिल गया कि मियाँ ये काम अब आसान नहीं है और तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। धरने की नाकामी से, लॉन्ग मार्च की नाकामी से तुम्हारी पहले ही बहुत बेइज्जती हो गई अपोजिशन को। तुम्हारी अपोजिशन को यानी हुक्मरान इत्तेहाद को तुम पर हंसने का मौका मिल रहा है, तो दोबारा एहतजाज की कॉल करोगे तो पहले से भी ज़्यादा बुरे हालत में आ जाओगे। अगर वो एहतजाज की कॉल नहीं देता तो फिर दूसरा तरीका ये है कि फिर वो खामोश बैठे। इस सूरत हाल में PTI के जो पुरजोश हामी हैं, जो इमरान खान को माफ़ौक़ुल फितरत क़ुव्वतों का मज़हर समझते हैं, उनकी मायूसी जिस मुकाम तक पहुँचेगी, जिस बुलंदी पर पहुँचेगी, उसका भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। चुनांचे ये मंजरनामा जिसके दोनों पहलू इमरान खान के सामने अच्छी तरह क्लियर हैं, ये बता रहा है कि इमरान खान को मजबूर कर रहा है उस ऑप्शन पर कि वो लंदन चला जाए, और इस सिलसिले में उसने मसलसल राब्ते किए हैं कि मुझे बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और ये राब्ते हुकूमत से नहीं किए, ये इजाज़त हुकूमत से नहीं मांगी जा रही, ये इजाज़त किसी और से मांगी जा रही है। तो उन्होंने इनको अपने अल्फाज में बता दिया है कि बाहर जाने की तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं पूरी हो सकती, ये अलग कहानी है, किस पर मुद्दा डाला जाता है, किस पर नहीं। तो अब इसने फिर मायूस होकर ये एक खिलाड़ शुरू किया है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, और राना सनाउल्लाह ने मेरे फलां आदमी को कत्ल करने का तो बाकायदा आर्डर भी दे दिया। अगर आर्डर दे दिया तो ज़ाहिर है उसकी कोई टेलीफोन टेप होगी, इसको लाओ सामने मैदान में कि राना सना ने फलां आदमी को कत्ल करने का हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, ये हर तरफ से नाकामी के बाद अब ये लंदन जाने की एक मायूसाना कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश के लिए इसने खुद पर कातिलाना हमले या अपनी जान को खतरे का ड्रामा बनाया है। अगले चंद दिनों में इसे ज़्यादा ज़ोर और शोर से उठाया जाएगा, कत्ल की कहानी ज़्यादा ज़ोर से फैलाई जाएगी। आप अंदाज़ा करें कि बनी गाला में PTI के कारकुन मुख्तलिफ इलाकों से और कुछ सिक्योरिटी कंपनियों के बहुत सारे गार्ड, मेरे ख्याल में कोई 100-150 के दरमियान गिनती है उन लोगों की जो वहाँ बनी गाला के गेट के आसपास चौकियाँ बनाकर कैंपों में बैठे हैं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पार्टी आई तो उसकी मुज़ाहमत की जाएगी। ये दुनिया सियासत की तारीख में पहली मिसाल है कि कोई लीडर गिरफ्तारी से इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि उसने अपने 100-150, बल्कि मेरे ख्याल है जो बाद में इतलात आई हैं कि वहाँ मज़ीद कुछ लोग भी पहुँचे हैं, तो चलिए हम 150 कर लेते हैं कि 150 आदमियों को उसने वहाँ खड़ा कर दिया कि मुझे गिरफ्तार नहीं होने देना। अभी तक हुकूमत उससे गिरफ्तार नहीं कर रही, लेकिन अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया गिरफ्तार करने का, तो ज़ाहिर है ये जो 150 आदमी, पहले तो इनकी बहुत अच्छी तरह ठुकाई होगी, इनके सर फूटेंगे, हाथ पांव टूटेंगे, ये ज़ख्मी होंगे, इनकी बुरी हालत हो जाएगी। गिरफ्तार तो फिर भी इमरान खान होकर रहेगा, क्योंकि ये तो कभी दुनिया में हुआ नहीं कि गवर्नमेंट किसी को गिरफ्तार करने का फैसला करे और वो एक 300 कनाल के बंगले में छुप कर बैठ जाए कि मैं तो गिरफ्तारी नहीं दूंगा। वो 300 कनाल पे बजाय अगर 600 कनाल का बंगला भी हो तो पुलिस ने तो उसे पकड़ना है, और जो उसे रोकने की कोशिश करेंगे ज़ाहिर उनकी पिटाई होगी, ठुकाई होगी, उन पर तशद्दुद होगा, एक ड्रामा खेला जाएगा, और उसके बाद जब गिरफ्तारी होगी तो फिर इमरान खान की ज़्यादा बेइज्जती होगी, क्योंकि फिर लोग कहेंगे कि जनाब इसको तो घसीट कर निकाल कर गिरफ्तार किया गया है। ये कोई इज्जत वाली बात नहीं है गिरफ्तारी से इस तरह डरना। दुनिया में जब भी किसी लीडर को गिरफ्तार किया जाता है तो वो हाजिर होता है गिरफ्तारी देने के लिए, मौजूद होता है, भागता नहीं है। सिवाय इसके कि उसने फ़र्ज़ कीजिए एक जलसा है, लॉन्ग मार्च करना है, तो उससे बचने के लिए लीडर हजरात आम तौर पर कोशिश करते हैं कि गिरफ्तारी न दें, बल्कि पुलिस को जुल देकर
जलसा गाह में पहुंच जाएं, एक मरतबा वहां खिताब कर लें, फिर पुलिस उनको पकड़ कर ले जाए। यानी वो एक शॉर्ट टर्म डाज होती है जिसका मकसद उस जलसे को, धरने को नाकामी से बचाना होता है, जिसका ऐलान उन्होंने कर रखा होता है। और माजी में हमने देखा पाकिस्तान में कई मरतबा ऐसा हुआ है कि धरने के लिए किसी लीडर ने कॉल दी, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए चढ़ दौड़ी और वो भेस बदल कर एम्बुलेंस में सफ़र करके इधर से उधर से जलसा गाह तक पहुंच जाता है। और जब जलसा गाह में अपना खिताब कर लेता है तो फिर वो इस ड्रामे को प्रोलॉन्ग नहीं करता, फिर वो कहता है कि आओ ठीक है, मैंने जलसा कर लिया, मुझे पकड़ लो। लेकिन ये इमरान खान वाहद देखा है जो ये कहता है कि मुझे गिरफ्तार करने का इरादा ही दिल से निकाल दो, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, मैं भूख हड़ताल कर लूंगा, मैं कैंप लगा लूंगा, मैं रजिस्ट करूंगा, मैं अपने गार्ड बुला लूंगा, मैं ज़मीन पर लेट जाऊंगा, टांगे मारूंगा, दुलत्तियाँ मारूंगा। ये नहीं, अजीब तमाशा है। तो अब हमारी तो इस बारे में कोई वाज़ेह राय फैसला को नहीं हो सकती कि क्या करना चाहिए। पब्लिक में तो जो गम गुस्सा है इसके बारे में, अगरचे इस हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया, लेकिन लोग जो हैं वो इस हुकूमत से खुश हों या ना हो, वो इमरान खान को गाली ज़रूर देते हैं, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में भी अगर तबाही का सफ़र जारी है तो ये इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। चुनांचे अवाम की जो अक्सरियत है वो तो चाहती है कि गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हुकूमत की पॉलिसी ये है कि ये इसी तरह इसको थक हार कर, कभी पता चले कि ये लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाला है, कभी पता चले कि वापस लेने वाला है, कभी इस असम्बली के अंदर वापस आएगा, कभी पता चलेगा नहीं आएगा, कभी पता चलेगा जलसा कर रहा है। तो इस तरह इसको थका थका कर इसको मज़ीद खज्जल ख़राब किया जाए, फिर पकड़ा जाए। बहरहाल देखिए क्या होता है, लेकिन ये जो लंदन जाने वाला ड्रामा है इसकी दाद देना पड़ेगी। नाज़रीन, इंशाअल्लाह कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।